Friends, another day for you. We have come here with an open heart and open mind and open eyes. Time and tide wait for none. We have learned this from our ancestors. We have learned this from the learned persons. We have learned this from various books, from various films. We know that who uses the time in a proper way, he is the winner of every kind of game. He conquers each and every problems in his life. So today, this episode will bring you a very new thing with a change of mindset, change of attitude among the students. Today, Chef Dinesh Srivastava, the evergreen chef of IHM Gwalior, and IHM Gwalior is the, I will say, first home of all the staff members, because we spend here from 9 a.m. to 5:30 p.m. from Monday to Friday on every week. So that is why we respect IHM Gwalior very, very much. And IHM Gwalior is giving us the motherly affection, is giving us the fatherly affection, fatherly love, because we are like getting our livelihood from this institute since a long time. So friends, wherever you are working, first of all, you have to worship the place in a very well way. You have to worship the place in a very proper manner, and you have to understand the thing, understand the structure, understand the setup in such a way so that in future, whatever you will receive from them, you will have to utilize them for the upgradation of your life, for the betterment of your life, for the final settlement of your life at any point of time, at any point of the globe, I will say. So that is why today I am Bankim Jordan, head of the department, and the Diploma Food Production in charge will tell you one thing, that let us walk the talk, let us talk the walk, and let us always maintain a pace with the passing of the time. So I have got our great supervisor, Mr. Rohit Jat. So Mr. Jat, I think the day is very good for you. This is the first day you are performing the supervision activity, performance? Yes, okay. You are a nice boy, I know it. And we have got our great evergreen chef, Mr. Dinesh Srivastava ji, and I love him very much. And I know that the magic can be only created in a spellbound manner by Chef Dinesh Srivastava, and everybody must be in wine of Sri Srivastava, because he has got the magical power within his hand. And he is evergreen and the ever, like I will say, I call it a heartthrob. Actually, what is the thing? Like, he always remains within the heart of IHM Gwalior. Not only he, Mr. Brijmohan Gabrani, Mr. Rakesh Ahuja, and all the staff members, they are really very great for our great institute. So, मैं अभी दिनेश श्रीवास्तव जी से बोलूंगा कि आज का जो स्पेशल मेनू आपने बनाया है, मैंने अभी पता किया है रेस्टोरेंट में कि पीपल आर वेरी वेरी हैप्पी. मेरे को ये भी रिक्वेस्ट मिल रहा है, सर काश ऐसा खाना हमें हर रोज मिले. तो मैंने उनको ये जवाब दिया कि सभी स्टाफ मेंबर्स हमारे लिए प्यारे हैं, सभी बच्चे हमारे लिए प्यारे हैं, और हम लोग सभी बच्चों के खाना हम लेना चाहेंगे, और दिनेश श्रीवास्तव जी जैसा हर कोई स्टाफ मेंबर बने. तो सर मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ. गॉड ब्लेस यू. आप हमारे दूसरे बच्चों को अपने शब्दों में 2 शब्द कहें. थैंक यू सर. आज जो मेनू बनाया है वो अवध कुजीन का है, और बड़ा अच्छा फुली न्यूट्रिशनली वैल्यू है की. मैं आपको दिखाऊंगा. आप इधर आइए. ये पनीर कैप्सिकम पुलाव, पनीर, इसको हाईलाइट, पनीर कैप्सिकम पुलाव. ठीक है जी. ये है मटर ड्राफ्ट. तो मटर ड्राफ्ट, ये मटर की बंगाल में घुंगनी बनती है, घुंगनी. ठीक है. यहाँ पे जो ये चंबल बेल्ट और जो मथुरा से जो लगे हुए हैं, ब्रश से जो लगा हुआ है, यूपी और एमपी में इसको नमूना को बोल दिया ड्राफ्ट. ये फ्रेश मटर से आप इसको बना के, और इसमें सबसे जो इसकी खूबी है, इसको भी काफ़ी रिच है. इसमें रोस्टेड मावा है, काजू नट पेस्ट भी है. तो मतलब एक हेल्थ के लिए आज बेहतरीन मेन्यू है, और बच्चों ने बहुत अच्छा सीखा. और मेरा सर ने जो तारीफ की उसके लिए धन्यवाद. लेकिन क्या बच्चे भी, जो टीम है, वो बच्चे अच्छी तरह से सीख रहे हैं. सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चे अच्छी तरह सीख रहे हैं, और हम चाहते हैं कि आने वाले बच्चे भी
इसी लगन से सीखें तो आपका भविष्य उज्जवल होगा। मैं यही कहूँगा कि बहुत बहुत धन्यवाद, मेरी टीम को भी धन्यवाद और जोधा सर को भी धन्यवाद। ये पूरा जो सब है ना, एक पर्टिकुलर एक व्यक्ति काम नहीं करता, पूरी टीम काम करती है और टीम का माइंड काम करता है। जैसे भीड़ में कोई दबा नहीं करता, लेकिन एक जो है संगठन बनाना पड़ता है। तो अगर खाना आपको बनाना है तो सारे के अंदर ये मैसेज होना चाहिए कि हम बेहतर से बेहतर अंजाम दें, तो आप अपने लाइफ में बहुत अच्छी ऊंचाई पर पहुँचोगे। विशेषकर मैं जब भी खाना बनाने की कोशिश करता हूँ, ये बनाना सिखाता हूँ, तो उसमें ये हमेशा मैं न्यूट्रिशन वैल्यू पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखता हूँ कि हम जो खिला रहे हैं कस्टमर को, अपन जो खिला रहे हैं उसमें कॉस्टिंग और क्वालिटी में कोई समझौता नहीं। क्वालिटी भी नंबर 1 की होनी चाहिए। मैं खुद ही उसको चेक करता हूँ, अच्छा होगा तभी मैं यूज करता हूँ। ये गजरोला बनाया है, काफ़ी फेमस है, ठीक है। तो इसमें रोस्टेड मावा को रोस्ट करके, गाजर को उसको घी के साथ भून के, और आप देखोगे ये जो इसकी है ना, ये जो कलर दिख रहा है ये बिल्कुल ऑथेंटिक है गाजर से। बस ये है कि कुकिंग मेथड को अगर आप फॉलो करेंगे तो ये नेचुरल कलर आएगा, अपने आप आएगा। तो मैं यहाँ ये क्लियर करना चाहता हूँ, कई लोग आए जो बोले कलर डलाएगा, मैं नहीं, कलर हम किसी चीज़ में यूज करते ही नहीं है। चाइनीज में हम अजीनोमोटो यूज करते ही नहीं है। जो हेल्थ के लिए चीज़ सही नहीं है वो हम उसको यूज करते ही नहीं है। हम जो नेचुरल जो तरीका है, जो नेचुरल जो इंग्रेडिएंट्स है, उसी रूप में हम प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं और बेहतर से बेहतर लोगों को सिखा सकें। बेहतर से बेहतर मेरे बच्चे दूर जहाँ इंडस्ट्रीज में जाएँ वहाँ अच्छे से अच्छा अपनी सर्विस दे सकें, संस्था का नाम हो, और आने वाले बच्चे ये मैसेज लेके आए कि हमें भी कुछ बनना है, हमें भी कुछ जीवन में कुछ करके दिखाना है। और मैं एक बात और क्या कहूँगा, अगर वर्तमान में ये हमारी जो जीडीपी है ना, उस जीडीपी में ये खाने का जो बिजनेस है ना 35% बहुत मेजर रोल अदा करता है। स्ट्रीट फूड, रेस्टोरेंट, होटल, इस सबको मिला के 35 जीडीपी इस प्रोडक्शन में है, खाने में है। तो मैं तो ये कहूँगा अधिक से अधिक लोगों को कि ज़्यादा से ज़्यादा आए और अपना रोजगार प्राप्त करें, रोजगार मिले। और जो हम सिखा रहे हैं ना, अगर आपको नौकरी भी नहीं करनी है, अगर आपको बाहर भी नहीं जाना है, तो इसमें जो फलसफा है ना, ओल्ड इज गोल्ड, सेब कभी बूढ़ा नहीं होता जब तक वो जिंदा, और सेब कभी कंप्लीट नहीं होता, रोज नई चीज़ सीखता है। मैं भी आज 34 साल हो गए इस लाइन में, लेकिन मैं आज भी लर्नर हूँ, मैं आज भी सीख रहा हूँ, क्योंकि रोज एक नई क्रिएटिविटी आप कर सकते हो और लोगों को अपनी क्रिएटिविटी से अवगत करा सकते हो। तो सबसे ज़्यादा अगर रोजगार की क्षमता है तो वो इस होटल इंडस्ट्रीज में है। मैं तो चाहूँगा अधिक से अधिक लोग, बच्चे जो 12th है या 10th पास आउट हैं, उनको अधिक से ज़्यादा होटल मैनेजमेंट ज्वाइन करके अपने खुद का सेटअप बनाए, खुद को रोजगार प्राप्त करें, अपने साथ 10 लोगों को रोजगार दें। तो जो मोदी साहब का जो मिशन है कि मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, ठीक है ना। आप एक एग्जाम्पल दे रहे हो, जैसे मोमोज है, मोमोज आप कई प्रकार के वैरायटी मोमोज बना करके रोज एक कमरे में ही से आप अपना बिजनेस चालू कर सकते हैं। तो हम उस तरह के लेवल का हम बच्चों को सिखाते हैं और मैं इनके बच्चों को उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। थैंक यू वेरी मच सर। धन्यवाद सर। मैं अभी अपने सुपरवाइजर को बोलूँगा कि हमारे दर्शक बंधु को एक एक चीज़ों को बताएं और उसका स्वाद लें, स्वाद चखें और अपने अपनी राय को साझा करें। सुपरवाइजर आगे आइए। पनीर कैप्सिकम पुलाव डैनी बताएगा। हेलो दोस्तों, माय नेम इज डैनी यादव, आई फ्रॉम मुरैना। आज हमने बनाया है कैप्सिकम पुलाव, पनीर कैप्सिकम पुलाव। और इसको बनाने के लिए पहले हमने राइस को वॉश किया। वॉश करने के बाद फिर हमने धोकर उसमें पनीर और कैप्सिकम डालकर इसको बनाया। और इस गार्निश के लिए इसमें हमने वो बरिस्ता लगाया। सुपरवाइजर आप हल्का सा लेके इसको टेस्ट करें। चावल के बारे में आप अपनी राय दीजिए दर्शक बंधु को। आप देख रहे हैं सुपरवाइजर इसको टेस्ट कर रहे हैं बहुत ही अच्छी तरीके से, और चावल के जो दाने हैं उसके ऊपर आप अपने विचार दीजिए कि वो पके हैं या नहीं, कहीं पे अगर रूम फॉर इम्प्रूवमेंट लेने हैं वो भी आप बता सकते हैं। स्वाद कैसा लग रहा है इसका? काफ़ी बढ़िया है, सही तरह से कुक हो गए हैं।
या पनीर वगैरह सबका अच्छा स्वाद आ रहा है। इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट आपको लग रहा है कि यहाँ पे इम्प्रूवमेंट होना है? कहीं पे किसी को लग रहा है इम्प्रूवमेंट होना है? मैं हल्का सा बोलूंगा मित्रों, यहाँ पे जो प्लेट है, कैमरामैन आप यहाँ पे आइए, आप देखेंगे चारों तरफ जो जगह है ये खाली है। तो यहाँ पे मैं बोलूंगा कि इन जगहों पे अगर हल्का सा कोई डेकोरेशन आप कर देंगे तो आपको इसमें आई अपील बोल के एक चीज़ है, हम लोग होटल मैनेजमेंट में सिखाते हैं। यहाँ पे काफ़ी आपको अच्छा लगेगा देखने में और आई अपील आपको बहुत अच्छी होगी यहाँ पे। तो इसलिए यहाँ पे मैं रूम फॉर इम्प्रूवमेंट लेना चाहूँगा कि यहाँ पे डेकोरेटिव चीज़ें यहाँ पे हो, ताकि उस राज्य से संबंधित चीज़ों को जो हम लोग जो आर्टिस्टिक तरीके से सामने ला पाएँ और इसको देखने वाले उस जगह के आर्ट के बारे में भी इस जगह से हमारे यहाँ से प्लेट से सीख पाएँ। आगे हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट आइटम है मटन ड्रैप। सुपरवाइजर आप हल्का सा टेस्ट करें, अपने मित्रों को टेस्ट कराएं। दर्शकगण आप देख रहे हैं कि इसमें जो ग्रेवी है बहुत ही सुंदर है, बिल्कुल शाकाहारी चीज है। इसके टेक्सचर को आप देखिए, देखते ही बन रहा है। कैमरामैन आप जरा पास में जाइए और इसमें आप हमारे दर्शक बंधुओं को दिखाएं कि इसके अंदर चीजें क्या क्या है। इसमें पनीर है, मटर है और जो ग्रेटेड पनीर का वर्जन है बहुत ही सुंदर तरीके से दिख रहा है। सुपरवाइजर आप हल्का सा टेस्ट करें और मैं भी हल्का सा टेस्ट करना चाहूंगा। तो मित्रों ये जो चीजें हैं, मैं आपको सच बताऊं, ये मैं एक बार टेस्ट कर चुका हूं, लेकिन इतना स्वादिष्ट बना है ये कि मैं इसको फिर से खाना चाहूंगा, क्योंकि मेरा मन नहीं मान रहा है, क्योंकि ये इतना सुंदर है। मैं इतने सालों से इसको जो है खाना बनाने की प्रक्रिया को देख रहा हूं, उसके बावजूद भी अगर मेरा मन नहीं मान रहा है, तो आप लोग जो देख रहे हैं कभी इसको नहीं खाएं तो आप प्लीज IHM ग्वालियर में आप जल्दी से जल्दी आइए, एडमिशन लीजिए और हमारे दिनेश श्रीवास्तव जी से इस ज्ञान को प्राप्त करें IHM ग्वालियर में। मैं उसको चखूंगा, परफेक्ट है। रूम फॉर इंप्रूवमेंट यहाँ पे वैसा कुछ नहीं है, टेम्परेचर बिल्कुल सही है और इसमें बिल्कुल शाकाहारी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इट्स ए वेरी गुड आइटम। मैं यहाँ पे सुपरवाइजर को बोलूँगा आप अपनी राय साझा करें। काफ़ी बढ़िया बना है, इसका टेक्सचर वगैरह सब सही है और सही तरह से कुक हो गया है, बढ़िया है सब। ओके, नेक्स्ट आइटम हमारा है चिकन करी। तो यहाँ पे जो व्यक्ति चिकन खाने वाले हैं वो ग्रेवी को टेस्ट कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कि चिकन करी नॉर्मल प्रिपरेशन है, ग्रेवी बहुत ही सुंदर है, हल्का सा डार्किश टच इसमें है और ग्रेवी को मैं बोलूंगा चिकन खाने वाले कोई अगर है तो उसको टेस्ट करें। हरिदास साहब क्या आप बहुत ही एक होनहार स्टूडेंट हैं जो रेस्टोरेंट में काम करने का एक्सपीरियंस जिनको है, आप चिकन को टेस्ट कर रहे हैं, हमारे यहाँ पे डाइनिंग चार्ट पे टेस्ट कर रहे हैं। आप अपने आप से पूछिए कि इसमें क्या कमी है, क्योंकि मैं तो खाना का पुजारी हूँ, खाना को ईश्वर के समान मानता हूँ, इसलिए जो है मुझे हमेशा खाना अच्छा लगेगा। हाँ, लेकिन खाना उतना ही खाएं जितना आप पचा पाएंगे। मैं इसको टेस्ट करूंगा, परफेक्ट है। मित्रों कल हमने बोला था सॉल्ट अगर कम हो जाता है हम लोग यहाँ पे रूम फॉर इंप्रूवमेंट ले रहे हैं। आज उस वादे को हमने निभाया, हमने देखा कि सॉल्ट बिल्कुल सही है। आप भी अपना वादा निभाइए, IHM ग्वालियर में आइए, डिप्लोमा फूड प्रोडक्शन में एडमिशन लीजिए, BSc होटल मैनेजमेंट में एडमिशन लीजिए, MSc में एडमिशन लीजिए। मई 2026 से इसका सेशन चालू होने वाला है। आगे में हरिदास चिकन करी बहुत अच्छी तरीके से बनाया है और ये करी है जो करी को ना अच्छी तरीके से पकाया गया है और इसमें सर के सहयोग से अच्छा बहुत सुंदर, बहुत ही अच्छी तरीके से हमने बनाया है और दिनेश सर का सहयोग हमने देखा है। कैमरामैन आप जरा फुलके के जो प्लेट है उसको आप हमारे दर्शक बंधु को दिखाएं, किस तरीके से इसको सजाया गया है और जो रैपर है किस तरीके से इसको जो है कलर दिया गया है, कलर कॉन्ट्रास्ट कितना सुंदर है। ये जो कलर कॉन्ट्रास्ट है ये कुछ हद तक अवधी कुजीन को टच करता है। तो जो फुलके हैं जो एक सिंधी टर्म है, नॉर्थ इंडियन टर्म है, लेकिन यहाँ पे जो अवधी टच को दिया हुआ है ये श्रेय जाता है दिनेश कुमार श्रीवास्तव जी को। उन्होंने अपने डायरेक्शन से बच्चों में ये जो है एक कॉन्सेप्शन दिया है कि यहाँ पे हम लोग अगर चाहें तो डेवलपमेंट बिल्कुल कर सकते हैं। इसीलिए जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने जो एक प्रोग्राम चालू किया था बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट। तो मित्रों कोई भी चीज़ खराब नहीं होती, इंसान चाहे तो उसको बहुत खूबसूरत बना सकता है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि ये जो चीज़ है
है बहुत छोटी सी चीज, लेकिन बड़े मनमोहक है ये। आगे हम लोग चलेंगे, यहाँ पे हम लोग देखेंगे बैंगन का भरता। कैमरामैन आप बैंगन का भरता को कवरेज लीजिए, और कुणाल राय आप अगर चाहे तो इस पर अपनी टिप्पणी कर सकते हैं। तो ओवर टू कुणाल राय प्लीज। गुड आफ्टरनून एवरीवन, माय नेम इज़ कुणाल राय, आई एम फ्रॉम ग्वालियर। अब जैसे कि हमने बनाया बैगन का भरता, पहले हमने बैगन को रोस्ट करा है गैस पे, और इसमें थोड़ा एक स्मोकी फ्लेवर आता है, और फिर हमने इसमें ऑनियन, टोमेटो, ग्रीन चिली ये सौते करके एक पेस्ट बना के हमने इसमें मिक्स करा है। बैगन का भरता नॉर्थ इंडिया में काफ़ी फेमस है, और बिहार साइड आप इसको लिट्टी चोखा के संग खा सकते हैं, और इसको गार्निश के तौर पे हमने जूलियन काट के जिंजर के ये रखे हैं। तो मैं आप वीडियोग्राफर दिखाऊंगा, एक बार आप इसको दिखाएं। कुणाल राय आप इसको हल्का सा टेस्ट करिए और हमारे दर्शक बंधु को अपने आत्मविश्वास का परिचय दीजिए कि हम लोग कितने जागरूकता से हर डिश को बनाते हैं और पूरी सावधानी से बनाते हैं। सुपरवाइजर आप भी टेस्ट करिए, इस पे ऑयल बिल्कुल सही मात्रा में है, सॉल्ट बिल्कुल सही है। आप मुझे भी दीजिए, मैं भी टेस्ट करूंगा। और हम लोग मित्रों जो भी बनाते रहते हैं हम वो खाते रहते हैं, और हमें इस बात पे कोई शक नहीं है, क्योंकि खाना अगर नहीं खाएंगे तो खाना बनाने में हमें त्रुटियां हमें समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए मैं इसको चखना चाहूंगा। बहुत सुंदर है, परफेक्ट है, और हर मसाले का जो बैलेंस है वो बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे रखा गया है। श्रेय जाता है हमारे एवरग्रीन, एवर परफेक्ट शेफ एंड द हार्ट थ्रॉब ऑफ आईएचएम ग्वालियर, दैट इज दिनेश कुमार श्रीवास्तव जी। क्योंकि आगे चलेंगे मैं यहाँ पे बोलूंगा कि कैमरामैन आप जरा सैलड को कवर अप करिए। सैलड को देखिए कितने अच्छी तरीके से फूल जैसे लग रहे हैं। इसमें मित्रों कोई बहुत ज्यादा कलाकारी नहीं है, केवल दिमाग का खेल है। कहां पे कौन से वेजिटेबल देकर उसको कैसे इफेक्टिव बनाया जा सकता है, तो ये चीज आप आईएचएम ग्वालियर में ही सीख सकते हैं। और आखिरी में हमारा है गजरौला, जो कि दिनेश श्रीवास्तव जी ने बताया है। और गजरौला में कैमरामैन आप बड़े अच्छी तरीके से बारीकी से इसको आप कवर अप करिए, ताकि हमारे दर्शक बंधु इसको देख के मनमोहित हो जाएं और वो भागा भागा आईएचएम ग्वालियर में आए, ताकि डिप्लोमा फूड प्रोडक्शन में वो तुरंत एडमिशन ले, क्योंकि हम उनसे मिलने के लिए एकदम उत्सुक हैं। क्योंकि हो सकता है कि कल अगर यहाँ पे एडमिशन ले लेंगे तो आगे समय में वो जनरल मैनेजर, कॉर्पोरेट शेफ या कहीं पे भी जाकर वो बस जाएंगे, क्योंकि होटल मैनेजमेंट बहुत ही सुंदर कोर्स है। उसके बाद मैं हल्का सा बोलूंगा कि एक गजरौला हाथ में लेके मिस्टर पंकज आप इसको हल्का सा तोड़े, अपने मित्रों को दीजिए। हमें ये बोलते हुए खेद हो रहा है कि हमारा कैमरामैन जो है वो टेस्ट नहीं कर पा रही है, बट वो पहले भी कैमरे में के सामने काम कर चुकी है, लेकिन मैं ही टेस्ट कर रहा हूँ मित्रों। हालांकि मुझे दुख हो रहा है, लेकिन फिर भी हमारा जो कैमरामैन है, कैमरा गर्ल है वो मिस आकृति, शी इज ए वेरी गुड गर्ल एंड वेरी एमिनेंट गर्ल। आगे मैं बोलूंगा कि सभी लोग इसको टेस्ट करिए और अपनी राय को साझा करें। बहुत सुंदर, अपने मन से पूछिए, कहीं अगर हमने गलती करी है तो हम उसको सुधारेंगे, क्योंकि हमारा कहना है हम सीखना जानते हैं, सिखाना जानते हैं, सुधरना जानते हैं, और हम अच्छी तरीके से ऐसे काम करेंगे ताकि हमारा भारत देश नंबर 1 में हमेशा राज करे पूरे विश्व ब्रह्मांड में। आगे मैं मिस्टर पंकज से बोलूँगा, अपनी राय को साझा करें। तो आज हमने बनाया है गजरौला, जिसमें हमने पहले गाजर को फिल किया, उसके बाद ग्रेटर से ग्रेट करने के बाद तो घी में उसको हमने अच्छी तरीके से भूजा है। दैन उसमें हमने फिर मिल्क को ऐड किया, मिल्क में उसको अच्छी तरीके से भूजा, जब तक पूरा दूध गाढ़ा नहीं बन गया, मतलब उसका एक मावा टाइप का नहीं बन गया था, तो उसको भूनते रहे। उसके बाद उसमें हमने शुगर को ऐड किया, शुगर अच्छी तरीके से पकने के बाद उसमें कार्डमम पाउडर डाला और ग्रेटेड मावा डाला, उसके ऊपर ड्राई फ्रूट डाल के उसको एक ट्रे में बहुत सुंदर। तो मित्रों ये था आज का एपिसोड। 4 दिसंबर 2025, ये दिन कभी वापस नहीं आने वाला है, क्योंकि वक्त एक बार जो चला जाता है वो वापस नहीं आता है, वो यादों में रह जाते हैं। इसीलिए हम इन प्रोग्राम्स को कैमरे बंद करते हैं और YouTube में अपलोड करते हैं, आप लोगों तक पहुंचाते हैं, और IHM ग्वालियर लाइव को हमेशा एवरग्रीन बनाते हैं। आप लोग हमें ज़रूर बताइए ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा, और हमसे वादा लीजिए कि हमसे अब ज़रूर मिलेंगे, बहुत जल्दी ही मिलेंगे स्टूडेंट के रूप में। मित्रों आप जहाँ पर भी हैं
हमेशा स्वस्थ रहें, बड़े प्रफुल्लित रहें और हमेशा कोशिश में लगे रहिए, क्योंकि कोशिश करने पर कृष्ण भगवान मिलते हैं और साथ में राधा माँ उनमें समाये हुए मिलते हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद।